Students, today we'll discuss the topic oxygen, and in this topic we'll discuss that how can we prepare the oxygen and what are the properties of oxygen. So I just start with the preparation of oxygen. Preparation of oxygen. सो बेटा प्रेपरेशन में बेसिकली आपको ध्यान क्या करना है यहाँ पे बेसिकली जो हमारे मेथड्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट आर जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन, सेकंड लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन, एंड थर्ड आर इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन. क्लियर? सो 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवीजन होगा इस टॉपिक का. सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. General methods. So in the general method, just see out first what we will use. First method is simply the decomposition of oxygen rich compounds decomposition of oxygen rich compounds. So in this category beta we will decompose first KMnO4 potassium permanganate. Second compound we will use KClO3 potassium chlorate. And third we will use KNO3 potassium nitrate. So these are oxygen rich compound. Mind it, ये आपके ऑक्सीजन रिच कंपाउंड से फिर से अंडरलाइन करते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट, सेकेंड पोटेशियम क्लोरेट, एंड थर्ड इज पोटेशियम नाइट्रेट. सो दिस कंपाउंड्स ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स यू, क्योंकि हम ऑक्सीजन का मेथड ऑफ प्रेपरेशन कर रहे हैं. सो एक प्रोडक्ट तो आपको पता ऑक्सीजन होगा, बट बाकी में क्या होगा जस्ट सी आउट. KMnO4 is converted into K2MnO4 plus MnO2. बेटा ये आपको लर्न करना है. KMnO4 converts into K2MnO4 and MnO2. K2MnO4 is potassium manganate and MnO2 is manganese dioxide. With the release of oxygen. So यहाँ फर्स्ट रिएक्शन में मेन आपको लर्न क्या करना है कि KMnO4 on decomposition always gives you K2MnO4 plus MnO2. ऑक्सीजन रिलीज होगा क्योंकि ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, तो ये डिकम्पोजिशन पर आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे. सेकेंड पोटेशियम क्लोरेट. इस केस में क्या करना है, सिंपल, दिस पोटेशियम एंड क्लोरीन दे विल कंबाइंड and gives potassium chloride with the release of oxygen. That is in the second case. Third case में क्या है, यहाँ से KNO3 it gets convert into KNO2 with the release of oxygen. This KNO2 is said to be potassium nitrite. KNO3 potassium nitrate, it is potassium nitrite. यहाँ potassium chlorate से I will get potassium chloride. So this we have done the first method by the decomposition of oxygen rich compounds. Second is by the heating of oxides, dioxides, peroxides and higher oxides. All these they on heating gives you oxygen. तो इसमें बेटा फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं. We will take Ag2O silver oxide. This on heating gives you silver plus oxygen. Second we will take oxide of mercury, that is HgO. This on heating gives you Hg plus O2. And be remember this triangle, it is the symbol of heating. ये बेटा आपको ध्यान रखना है. थर्ड इन दिस कैटेगरी वी विल टेक MnO2. MnO2 is
manganese dioxide. This on heating gives you Mn3O4 plus oxygen. Mn3O4 is manganese oxide. ये ध्यान रखना है. Clear? So manganese dioxide gives you manganese oxide and oxygen. Now in this category, next Pb3O4. It is said to be lead tetraoxide. So lead tetraoxide on heating gives you PbO, lead oxide and oxygen. Now in this category, next is lead dioxide, PbO2. It is said to be lead dioxide. So lead dioxide on heating gives you PbO plus O2. This PbO2, be remember, it is lead oxide. Clear to all of you? Now the last example, peroxide. We will take BaO2. This is barium peroxide. So this barium peroxide on heating gives you barium oxide and oxygen. बेरियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सो यहाँ पर बेसिकली इस मेथड में देखिए बेटा, हमने वी विल यूज द ऑक्साइड्स लाइक सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड. क्लियर? देन वी विल यूज डाइऑक्साइड. यहाँ पे हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड को यूज किया, देन लेड डाइऑक्साइड. देन वी विल यूज पेरोक्साइड, हेयर वी विल यूज बेरियम पेरोक्साइड. और हायर ऑक्साइड में हमने यूज किया, वी विल यूज Pb3O4, दैट इज लेड टेट्रा ऑक्साइड. सो दीज ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, पेरोक्साइड, हायर ऑक्साइड, these on heating gives you oxygen. This is the second general method. Now the third general method is by the decomposition of hydrogen peroxide. All of you know hydrogen peroxide is H2O2. This aqueous H2O2 on decomposition gives you water plus oxygen. So this is the third method. Clear? So listen student, as far as general method are clear, we are having the three methods. First is by the decomposition of oxygen rich compounds, second by the heating of oxide, dioxide, peroxide and higher oxide, and third is the decomposition of hydrogen peroxide, aqueous. Now we'll shift to the laboratory method of preparation. Laboratory methods of preparation. So in the laboratory method of preparation, first is simply by the decomposition of KClO3. ऑल ऑफ यू नो हमने अभी डिस्कस भी किया था. कुछ मेथड बेटा दोनों कैटेगरीज में आएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है. KClO3 इज सिंपली पोटेशियम क्लोरेट. So I will write KClO3, potassium chlorate. Clear? On thermal decomposition, in the presence of, note down this MnO2. This MnO2 here act as catalyst. It will here act as a catalyst. So this on heating, you know, potassium and chlorine, they will combine as it is and give KCl with the release of oxygen. So this is the first method. Now the second is by the action of water on Na2O2. Na2O2 that you have to remember. तो इसमें बेटा बिल्कुल सिंपल रिएक्शन आपको करनी है. Na2O2 प्लस वाटर, व्हाट इट गिव जस्ट सी आउट. सो यहाँ पर बेटा बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है. वाटर मीन्स H एंड OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव. सो बेटा यहाँ पर जो सोडियम है वो आपका पॉजिटिव स्टेट में है, तो सोडियम कंबाइन विद OH एंड इट विल गिव यू NaOH.
सोडियम कंबाइंड विद OH गिविंग यू NaOH. ठीक है, अब व्हाट इज लेफ्ट, ऑल ऑफ यू नो, O2, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. क्लियर? So this is the second method we have done, in which we simply use the action of water on Na2O2. ये आपको ध्यान रखना है. This is, you can see, सोडियम. अब यहाँ पर देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कंपाउंड का नाम क्या है. तो आपको एक चीज़ को थोड़ा रिमाइंड करना है कि ऑक्सीजन पे अगर -2 चार्ज हो दैट इज़ द ऑक्साइड. अगर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो इट इज़ पर ऑक्साइड. और बेटा ऑक्सीजन पे -1/2 हो इट इज़ सुपर ऑक्साइड. सो यहाँ पर चेक करते हैं ये कौन सा है हमारा. सो Na2O2, वी नो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1. सो यहाँ पे 2 हो जाएगी. ऑक्सीजन की x एज्यूम कीजिए. सो 2 + 2x = 0. सो 2x = -2, x = -2/2 -1. तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की स्टेट -1 आ गई. इट मीन्स दिस इज सिंपली द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम पर ऑक्साइड. सो बेटा इस चीज़ को फोकस करना है. जब भी कंफ्यूजन हो कि कंपाउंड आपका ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, सो यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंगल ऑक्सीजन. सिंगल ऑक्सीजन पे -2 आएगा, इट इज ऑक्साइड. -1 पर ऑक्साइड, और -1/2 में क्या हो जाएगा, वो सुपर ऑक्साइड. सो इन दिस कैटेगरी नाउ वी आर हैविंग वन मोर मेथड, थर्ड लेबोरेटरी मेथड. So third laboratory method is simply prepared by the action of acidified KMnO4. Be remember this one. Acidified KMnO4 means acidified potassium permanganate on Na2O2, that is sodium peroxide. So just see out the reaction. So बेटा यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट प्लस, अब एसिडिफाइड मीन्स यहाँ पे आई विल यूज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस Na2O2. नाउ व्हाट इज द रिएक्शन. बहुत सिंपल रिएक्शन है. सबसे पहले यहाँ पे मेटल देखिए कौन कौन से हैं, पोटेशियम, मैग्नीज और सोडियम. ऑल दीज मेटल दे विल कंबाइन विद द सल्फेट गिविंग यू K2SO4 पोटेशियम सल्फेट. जब पोटेशियम कंबाइन करेगा, व्हेन सोडियम कंबाइंड यू विल गेट Na2SO4. और बेटा वन इज लेफ्ट, व्हेन Mn कंबाइंड यू विल गिव मैग्नीज सल्फेट, दैट इज MnSO4. नाउ 2 more products are there, hydrogen and oxygen, they will combine to form water with the release of oxygen. क्लियर. सो यहाँ पर मेन हर एक रिएक्शन को लर्न करने का देयर इज अ पर्टिकुलर वे. जैसे इसको हमने कैसे लर्न किया, ऑल द मेटल दे विल कंबाइन विद द सल्फेट गिविंग द रेस्पेक्टिव सल्फेट्स. हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे विल कंबाइन टू गिव यू वाटर विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर. So these three are said to be the, you can say, laboratory method. So we have done the general methods, we have done the laboratory method. Now we will do the industrial method of preparation of oxygen, or you can say commercial method also. Industrial method is also said to be the commercial method भी बेटा इसको बोल सकते हैं. So third one just see out, commercial methods. So in the commercial method is concerned, there are two methods. First is electrolysis of water. So all of you know, water gives you, water में क्या provide करेगा, it gives you H पॉजिटिव, या पहले पर्टिकुलर बेटा मेन रिएक्शन आपको बताते हैं कि वाटर जो है इट गिव्स यू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर. सो अगर बात की जाए मैकेनिज्म की, सी आउट, वाटर गिव्स यू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. नाउ हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होती हैं, वन इज एनोड, अनदर वन इज कैथोड. एनोड पे नेगेटिव आयन एनाइन जाता है, कैथोड पे पॉजिटिव आयन कैटायन. सो यहाँ पर OH नेगेटिव आएगा आपका एनोड पे और H पॉजिटिव आएगा आपका कैथोड पे. सो यहाँ पर ध्यान कीजिए, 4 OH नेगेटिव दे विल गिव यू
2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसको चेक करते हैं, देखिए OH नेगेटिव आयन हमने 4 टाइम्स लिखा दिस वे। अब इसमें देखिए क्या रिलीज हुआ है। एनोड पे जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देर इज एन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सिंपली मीन्स देर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑक्सीजन O2। नाउ बेटा ये H2O, दिस इज H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन जो आपकी लिबरेट होगी वो कहाँ पर लिबरेट होगी? एनोड पे। कैथोड पे क्या होता है? बी रिमेंबर एट कैथोड देर इज अ रिडक्शन। सो H पॉजिटिव इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू H। अब हमें पता है हाइड्रोजन की जो स्टेट होती है वो H2 होती है। सो यहाँ पर 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज होगा? इट इज रिलीज एट कैथोड। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, फर्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Second is by the fractional distillation of air. So beta the main thing that you know कि air mainly contains two gases, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो गैसेज उसमें होती है, ठीक है ना। तो अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, सो नाइट्रोजन, बी क्लियर, नाइट्रोजन विद लेस बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, नाइट्रोजन विद लेस बॉइलिंग पॉइंट 78 केल्विन डिस्टिल्स ऑफ एज वेपर, while oxygen with higher boiling point। अब boiling point लर्न भी करना है आपको, got it, 90 केल्विन। ऑक्सीजन विद हायर बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन रिमेन इन द लिक्विड स्टेट। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? देखिए इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑल ऑफ यू नो, सपोज आप कर रहे हो तो दिस इज द सैंपल। इसमें मानिए हमारे पास दो गैसेज हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, नाइट्रोजन हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट 78 केल्विन। तो 78 केल्विन पर नाइट्रोजन विल कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है, ये नाइट्रोजन सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर पीछे क्या बचा आपका? ऑक्सीजन is present in the liquid state because oxygen has the boiling point 90 Kelvin। 78 Kelvin पर ऑक्सीजन के वेपर नहीं बनेंगे, किसके बनेंगे? नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन गेट वेपोराइज्ड and leaving behind the oxygen liquid। So these are the two commercial methods, clear? So student, this is all about the preparation of oxygen. Now we will shift to the properties of oxygen। So in the properties of oxygen, first we will discuss physical properties। Now as far as physical properties are concerned, the oxygen is number one, colorless, tasteless and odorless gas। There is no any particular odor। Point number two, magnetic nature। Now as far as magnetic nature is concerned, this oxygen, mean clear बेटा, ऑक्सीजन जो है वो O2 होता है, therefore it is sometime also said to be dioxygen। This thing you have to keep in your mind। So as far as magnetic nature is concerned, the oxygen is oxygen is paramagnetic। So you know that the paramagnetic nature is due to the presence of unpaired electrons। जो पैरामैग्नेटिक नेचर है, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक नेचर भी हम इसको बोल सकते हैं, क्लियर। सो ये मैग्नेटिक नेचर किस वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। दिस आई विल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो ऑक्सीजन में टोटल 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन्स है। सो बेटा अगर मैं MO कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, इफ आई राइट द MO कॉन्फ़िगरेशन, सो 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, क्लियर। आफ्टर दैट सिग्मा
2pz2 pi 2px2 pi 2py2 then pi star 2px1 pi star 2py1. नाउ काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हैं कि नहीं. So this is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 electron complete. Now these two orbitals pi star 2px and pi star 2py, these orbital they contain unpaired electron. Now due to these unpaired electron, the oxygen it will behave like a paramagnetic substance, or you can say it is magnetic in नेचर. क्लियर. तो अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो. जस्ट सी आउट मैग्नेटिक मोमेंट. म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन. सो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है. सो अंडर रूट 2 प्लस 2. सो अंडर रूट 2 4 और अंडर रूट 8. सो बेटा 8 को अगर आप फैक्टराइज करोगे इट विल बी 2 रूट 2 आएगा ओपन हो गए. सो 2 इंटू 1.414 अंडर रूट 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करो. 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2. सो 2.828 बोहर मैग्नेटॉन. दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्सीजन. नाउ वी विल शिफ्ट टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. Chemical properties. Now in the chemical property beta, first thing is just note down, very important, we'll study like that. First property में it is अगर हम लिटमस से रिएक्शन करें so it is neutral towards the litmus, no reaction toward the litmus, उसका कलर चेंज नहीं करेगा. there is, you can say, no color change, that you have to remind. Now second, we will do reaction with metals. So in this category of reaction with metal, just see out, we will do the reaction with some metals. So इसमें first अगर आप करें सोडियम से, then we will form Na2O, सोडियम ऑक्साइड. अकॉर्डिंग टू वैलेंसी आपको कंबाइन करना है विद कैल्शियम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, विद सोडियम. अब इस चीज़ को ध्यान कीजिए, सोडियम की रिएक्शन 2 बार आ रही है. सेकेंड, सोडियम एट 575 केल्विन और यू कैन से एलिवेटेड टेम्परेचर. 575 केल्विन और एलिवेटेड टेम्परेचर, इट गिव्स यू सोडियम परऑक्साइड. बेटा नॉर्मल आपको क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर. एट एलिवेटेड टेम्परेचर यू विल गेट सोडियम परऑक्साइड. क्लियर. आफ्टर दैट अगर आप मैग्नीशियम से रिएक्ट करोगे तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. देन एल्यूमिनियम से करेंगे, देन आई विल गेट अकॉर्डिंग टू वैलेंसी Al2O3. और अगर आप आयरन से रिएक्शन करोगे देन ऑक्सीजन प्लस Fe, देन आई विल गेट Fe2O3. So this we have completed the reaction with metals. Next we will do the reaction with compounds. Reaction with compounds. So just see out in this category, this is oxygen. First we will do the reaction with HCl in presence of CuCl2. So बेटा देखिए कैसे रिएक्शन होगी. यहाँ पर हाइड्रोजन हैज़ द ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स वाटर विद द रिलीज ऑफ क्लोरीन. वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन की एफिनिटी है ऑक्सीजन से तो उससे कंबाइन होगा विद द रिलीज ऑफ क्लोरीन. सेकेंड, अमोनिया. So in ammonia, nitrogen and oxygen, they will combine to form NO. Clear? With the release of hydrogen and oxygen, they combine to form water. Third, we will react with
SO2 in the presence of V2O5. This is vanadium pentaoxide. This vanadium pentaoxide here act as catalyst. तो sulfur dioxide plus oxygen, it gives you SO3, sulfur trioxide. So in this category we have done the reaction with 3 compounds. Next, number 4. Now reaction with कार्बन डाइसल्फाइड. सो यहाँ पर अब आपको क्या ध्यान करना है, कार्बन डाइसल्फाइड, ZnS जिंक सल्फाइड, और थर्ड बेटा इसी कैटेगरी में लेंगे हम HgS. सो यहाँ पर बेसिकली इन तीनों में दोनों एलिमेंट्स ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे. जस्ट लाइक कार्बन भी जुड़ेगा ऑक्सीजन से, सल्फर भी. सेम हेयर जिंक एज वेल एज सल्फर, सेम हेयर मर्करी एज वेल एज सल्फर. So in all the cases I will get the 2 products. तो फर्स्ट में I will get, जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा CO2, when सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा I will get SO2, CO2 and SO2. Same in case of ZnS. Zinc combined with oxygen gives you ZnO. Sulfur combined with oxygen it will give you SO2. And in the last case, जब मरकरी कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से I will get HgO, and when the sulfur combined I will get SO2. So student, this is all about the reaction with compounds. Next we will do the reaction with hydrocarbons. Reaction with hydrocarbons. So in this category मैं simply बता दूं कि hydrocarbons plus oxygen always gives you कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिर्फ आपको 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो यहाँ पर आप ऑक्सीजन की रिएक्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन से कीजिए. आइदर मीथेन यू विल टेक, CH4 से कीजिए, और C2H6 से कीजिए इथेन, और C2H4 से कीजिए, या C2H2. एनी हाइड्रोकार्बन यू कैन चूज. ऑलवेज 2 प्रोडक्ट्स आर देयर, CO2 plus H2O, CO2 plus H2O, CO2 plus H2O, and CO2 plus H2O. So friends, this is you can say all about the topic that is oxygen, जिसमें हमने उसकी method of preparation, physical properties, chemical properties that we have done. So this is all about the topic. That's all.